अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पोस्ट आ रहे हैं ना, आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके, just there are 15 students. What about the remaining students? Are you able to hear me? My voice is clear. वालेकुम अस्सलाम सरद, सब कैसे हैं? ठीक हैं? अभी तुम लोग जो है ना प्रेजेंट वगैरह अटेंडेंस स्टार्ट पे मत किया करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई यूजुअली टेक द अटेंडेंस एंड आई विल लेट यू नो. So just wait while I am uploading the lecture basically. Okay, just wait, girls. I'm uploading your lecture. Where is the lecture? और कुछ समझ आ रही है एंजाइम्स की क्या सीन है? कुछ फीडबैक वगैरह भी दिया करो ना, कुछ समझ भी आए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें क्या समझ वगैरह आ रही है? तुम लोगों ने घर जाके देखा है, इसको स्टडी कर रहे हो? ठीक है, फाइंडिंग इट इजी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये सारा फीडबैक जो है ना, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली व्हेन यू गिव मी फीडबैक आई विल बी अवेयर कि हम सही डायरेक्शन में आ रहे हैं. ठीक है, और जब तुम लोग फीडबैक नहीं दोगे तो फिर हाउ कैन आई एवेल्यूएट? ठीक है, तो डी सबके एंड पे चीजें ठीक होंगी. ठीक है, अब तो चीजें बेहतर भी हो रही हैं थोड़ी सी, कोविड भी. और होपफुली द कॉलेज इज आल्सो गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर 15. वी आर होपिंग सो थिंग्स विल बी बेटर. एपिसोड 14. जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर. ओके, ओके जी, आई थिंक इट इज अपलोडेड. नहीं हुआ अपलोड, एक मिनट. इट इज टेकिंग फ्यू मोर मिनट्स, वरना तो फौरन ही हो जाता है अपलोड. चलो, जैसे ही अपलोड होता है ना हम स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, कोई प्रॉब्लम एंजाइम्स में, बुक्स वगैरह तुम लोगों के पास हैं तो प्लीज ओपन द बुक्स. ठीक है, जिन लड़कियों के पास भी बुक्स वगैरह हैं वो ओपन कर लो. बुक्स वगैरह जिनके पास हैं तुम लोग सब ओपन कर लो. ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है स्क्रीन से पढ़ना और कुछ अंडरलाइन करना या जैसे, तो वो इजी हो जाएगा बुक से. आई थिंक विच यू फील हमें रिवाइज भी करनी चाहिए, दोबारा भी करनी चाहिए, वो भी तुम लोग जो है ना अपने सजेशंस में दे सकते हो. Just wait, I'm working over it. Just wait.
Just wait so that we may upload it. It is not uploaded yet. Okay, enzymes हमने किए coenzymes और cofactor में difference मेरे ख्याल में अभी हमने नहीं किया था. Factors I think we have done. कौन से factors थे जी जो enzymes की activity पे affect करते हैं? What are the factors which are going to affect the enzyme activity? Anyone out of you who is going to tell? What are the factors which are going to affect the activity of the enzyme? Okay, girls, what are the factors which are going to affect the enzyme activity? मेरी आवाज आ रही है तो जरा factors बताओ. Substrate concentration, yes, Mariam, Tariq, good. Enzyme concentration, temperature, pH, products, metalines, inhibitors, yes. Anyone else? कौन से factors हैं अभी? This is very easy question which I am going to ask. Very easy question. Any one of you can tell. Okay, Khatija, good. Mariam, Mariam, Tariq और Khadija सिर्फ 2 का reply आया है मुझे. What about the remaining students? Are you sleeping? Factors affecting enzyme activity, enzyme concentration. The lecture has been uploaded. Okay, it has been uploaded. वो खराब हो चुकी नहीं है. G, it has been uploaded. No, I think it's a bigger file. That's why it is the taking time. But meanwhile, होगे ना तो next का तो हमें कोई फायदा नहीं होगा. So revision is must. Okay, so finally, yes, finally, what about the classification? Because this is very important. बाकी मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया. 2 का ही आया है. सुंदर नहीं, अदीला, सफदर ठीक है. 2-3 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया है मुझे, ठीक है. और classification we have done. This is one of the important topic. Prosthetic group we have done, holoenzyme, types of enzymes, isoenzymes, and the factors affecting the enzymatic concentration. Now the next topic which we are going to study is basically, I think previously we have done with only the substrate concentration. Have we done the pH and temperature and other factors which are affecting the enzyme concentration? I think we have not done. We have done just substrate concentration. No, if we increase the enzyme concentration in a chemical reaction, in a type of chemical reaction where we are taking a substrate concentration constant and we are going to increase the enzyme concentration, now what will be the effect of this on the rate of reaction of the enzyme? The rate of reaction will increase or decrease, or it will remain steady? Any one of you can reply, can text, can chat. कि अगर हम substrate की concentration को constant रखते हैं and we are going to increase the enzyme concentration,
then it is going to affect the enzymatic rate of reaction or enzyme activity. Will it will be increasing the rate of reaction or decreasing, or it will be remain constant? What will be the effect of this? इफेक्ट क्या होगा अगर आप एंजाइम कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाना चाहिए ना, क्योंकि एंजाइम तो रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं, ऐसा ही है। it will increase the rate of reaction, but इसका भी इफेक्ट वही होगा as similar same with the substrate concentration। जैसे हमने substrate concentration increase की थी तो जितना enzyme था उसको अटैच कर गया, तो initially we will say that initially the rate of reaction will increase, but after some time when all the substrate will be utilized or will be bind to the enzyme, when there will be no substrate remaining, and if we are going to increase the enzyme concentration, that it is not going to affect the rate of reaction, definitely it will be a steady plot। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो it will be a steady plot। तो initially there will be a rise in the reaction, ठीक है, initially the rate of reaction will increase, but when all the substrate available will be bound to the enzyme, will be bound to the active site of enzyme, then at that stage increasing the enzyme concentration is not going to affect the rate of reaction। So initially it will increase, but then it will be giving a steady plot। So this is the effect of the enzyme on the rate of reaction। तीसरी चीज है टेम्परेचर। टेम्परेचर से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, बट एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर ना। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स हमने बात की है कि जो ज्यादातर एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर। तो सो प्रोटीन्स आर वेरी डेलिकेट। इसी तरह से जैसे देखो हमारे बालों में प्रोटीन होती है, हल्की सी भी आग या टेम्परेचर, जैसे हम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो लग जाए तो ये बर्न हो जाते हैं, तो इसी तरह से एंजाइम्स भी बहुत डेलिकेट होते हैं लाइक द प्रोटीन्स, एंड दे लूज देयर एक्टिविटी, ठीक है, दे लूज देयर फंक्शन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर टू अबव द सर्टेन लिमिट। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो बेस्ट ऑप्टिमम हम किसको कहते हैं, जो मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर है फॉर द एंजाइम्स दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और 37 से अबव जब हम अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो इस मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की जो मैक्सिमम लिमिट है ना जो टेम्परेचर की, दैट इज अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 37 ऑप्टिमम है, 50 तक दे कैन टॉलरेट, बट अबव 50 एंजाइम्स आर गोइंग टू डीनेचर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर हम 50 से भी ऊपर चले जाएंगे तो एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है ना वो डीग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दे विल स्टार्ट गोइंग टू डीग्रेड, इसकी डीनेचुरेशन हो जाती है एंजाइम की, ठीक है। डीनेचुरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर, कि एंजाइम्स का जो थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना वो समझ लोगे वो टूट जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो हम एक सर्टेन लिमिट तक जो है ना सिर्फ एंजाइम्स का टेम्परेचर जो है ना हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद जो है ना एंजाइम्स डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अप टू अ सर्टेन लिमिट एंजाइम्स का जो टेम्परेचर है ना वो होता है, उसके बाद एंजाइम्स जो है दे आर गोइंग टू डिग्रेड बेसिकली। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है कि अगर तो टेम्परेचर सपोज 2 है, 3 है, तो डेफिनेटली इफ इंक्रीज द टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, ठीक है। और अप टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक आइडियल टेम्परेचर है फॉर एंजाइम्स टू वर्क। बट इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर मोर देन दिस, ठीक है, इससे हम अगर ज्यादा करेंगे 37 से, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज हैं वो, जो एंजाइम की बेसिकली जो एक्टिविटी है वो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। So the for the optimum or for the suitable enzyme activity क्या होगा कि जो टेम्परेचर है it should be limited to only 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और 37 से भी मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि 50 तक टॉलरेट करते हैं एंजाइम्स, और अबव 50 जो है ना, अबव 50 दे आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एक्सेप्ट अ फ्यू एंजाइम्स। मैं एक बात और भी डिस्कस कर दूं कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो जिनको हम थर्मोफिलिक एंजाइम्स कहते हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स कहते हैं, और थर्मो मींस टेम्परेचर। दीज आर द बेसिकली एंजाइम्स, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि एंजाइम जो टेम्परेचर जो है ना उसको 100 से अबव को भी बेयर करते हैं, ठीक है, अबव 100 टेम्परेचर भी बेयर करते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो
but they are very limited and specific enzymes which are bearing the temperature above 100. Okay, they are the basically specific type of the enzymes. ठीक है क्लास, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट था जी। अब पीएच, इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट if we are going to increase the temperature above 37 degrees centigrade, it will going to decrease the rate of the reaction, or enzyme activity will reduce, enzyme can denature. The next is pH. What is the effect of the pH on the rate of the reaction? So pH का effect ये है कि for every enzyme there is a special optimum pH. ठीक है, हर enzyme की अपनी एक suitable pH है जिस पे enzyme active होता है, ठीक है, reactive होता है। जैसे कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन कभी सुने हैं एंजाइम्स? स्टमक के एंजाइम्स हैं एंड दे आर ओनली एक्टिव इन एसिडिक पीएच। जब हम इनको एसिडिक पीएच प्रोवाइड करेंगे दे विल बी एक्टिव, अदरवाइज दे विल बी इनएक्टिव। और एसिडिक पीएच कौन सी पीएच है, क्या रेंज है पीएच की जिसको हम एसिडिक कहते हैं? कौन मुझे बता रहा है, स्पेशली बॉयज में से? एसिडिक पीएच कौन सी पीएच की रेंज है जिसको हम एसिडिक पीएच कहते हैं? कोई नंबर्स क्या होंगे उसके? एसिडिक पीएच बताओ, हु इज गोइंग टू टेल एसिडिक पीएच? एसिडिक पीएच की रेंज जो है वो क्या होती है? What is the range of the basically acidic pH? लेस देन 7, बिल्कुल जो है ना, लेस देन 7, 7 तो न्यूट्रल है। तुम लोग 7.25 7.5 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 इज द न्यूट्रल, ठीक है। और हाईली एसिडिक वो होगी जो 1 2 यानी कि 0 के करीब होगी, 1 2 3, दैट विल बी द हाईली एसिडिक पीएच। 7 is the neutral pH, and above 7 there is a basic pH. So basically when I'm talking about the acidic pH, and it means the pH near 1 2 or 3, because as we go downwards towards the 7 point, तब पीएच जो है एसिडिक उसकी वीक एसिड होनी शुरू हो जाती है, देखिए वो वीकली एसिडिक होगी near 7, but near 1 2 3 the pH will be strongly acidic. So there are certain enzymes basically like pepsin and trypsin which are active in the acidic environment in our stomach like acidic pH, जो हमारे digestive system के भी enzymes हैं, ठीक है। तो पेप्सिन ट्रिप्सिन जो है वो 1 2 पीएच पे हाईली एक्टिव होते हैं। अगर आप अब हर, इसलिए कोई फिक्स रेंज नहीं है कि पीएच इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक पीएच है, इट विल ओनली वर्क इन दैट रेंज। if we increase or decrease that specific pH, then the enzymatic activity will be disturbed and the rate of reaction will be affected accordingly, ठीक है। उसी के accordingly rate of reaction भी affect होगा। इसके बाद जो next है, the parameter which is affecting the rate of reaction, that is the products of the reaction, ठीक है। And listen to it carefully, what is meant by the products of the reaction. If the products of the reaction are removed as fast as they are formed, then the reaction will proceed in the forward dimension. If the products of the reaction are not removed as fast as they are formed, then the reaction will either slow down or it will stop completely. ये ऐसा ही है कि जितनी जल्दी जो है हम जो भी रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं वो रिमूव करेंगे, ठीक है, उतना ही स्पीडी फॉर्म में और राइट डायरेक्शन में आपका जो रिएक्शन है ना वो प्रोसीड करेगा। इफ यू आर नॉट रिमूविंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, देन आपका जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, इट विल स्लो डाउन and the rate of reaction will decrease. Basically rate of reaction will decrease, it will slow down and the rate of reaction will decrease. For example, I am giving the example कि सपोज ए से जो है ना, सपोज ए से जी एक प्रोडक्ट बन रही है बी, अभी तुम लोगों को ये मिल जाता है, ठीक है, और बी से सी से डी, ये जो ए बी सी डी लिखा है मैंने, ये बेसिकली दीज आर द, सपोज समझ लो कि ए रिएक्टेंट है और बी सी डी उसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है।
अब देखो जितनी जल्दी हम अपनी जो है ना लास्ट प्रोडक्ट जो डी है, जितनी जल्दी इसको रिमूव करते जाएंगे ना, तो उतना ही रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। अगर डी वहीं का वहीं पड़ा रहेगा तो ये पूरा रिएक्शन जिसने दोबारा ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है, डी बनाना है, सारा रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? इफ वी आर गोइंग टू remove the products of the reaction fastly, then the reaction will proceed in the positive direction or it will increase its speed। ठीक है, अगर हम अपनी फाइनल प्रोडक्ट जो डी है, अगर हम इसको इंस्टेंटली रिमूव करते जाएंगे तो रिएक्शन हमारा ए बी सी फॉरन डी फॉरन बनाता जाएगा। अगर डी वहीं पड़ा है तो उसका मतलब है कि अभी इनको नहीं चाहिए और प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन। इसी तरह से बॉडी में एंजाइमेटिक जो केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे बेसिकली इनका मोड ऑफ एक्शन यही है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, के ये क्या करते हैं बेसिकली कि जब हमारी प्रोडक्ट कोई बायोमोलिक्यूल हमारी प्रोडक्ट है ना, जब वो बन जाती है और जाहिर है हम उसे भी यूज नहीं कर रहे, यानी कि एम्पल अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में बन गई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर खुद ही जो है ना वो बेसिकली स्टॉप कर देगा। जब देखेगा कि ये यूज नहीं हो रही, ये कंज्यूम नहीं हो रही, इसका मतलब है बॉडी में हाई अमाउंट में है, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिर स्टॉप कर जाता है। इसके बाद ही मेटल आयंस हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से एंजाइम्स हैं जिनको फंक्शनिंग के लिए ना मेटल आयंस चाहिए होते हैं। ठीक है, मतलब कि एज ए को फैक्टर्स उनके साथ मेटल आयंस बेसिकली अटैच होते हैं एज ए को फैक्टर्स। को फैक्टर्स और को एंजाइम्स में फर्क पता नहीं अभी किया था कि नहीं, आई डोंट नो हैव वी डन दिस और नॉट, के को फैक्टर और को एंजाइम्स में क्या फर्क है। तो ख्याल है अभी हमने नहीं किया ये। अच्छा, तो कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको वर्किंग के लिए ना साथ में को फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, यानी कि वो को फैक्टर्स ज्यादा होते हैं मेटल एटम्स। ठीक है, वो को फैक्टर्स होते हैं ज्यादातर मेटल एटम्स, उनको फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनको जो है ना वो चाहिए होते हैं। अब इसमें एंजाइम्स की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है कि जो कि जिंक की मौजूदगी में ही बेस्ट परफॉर्म करता है। अगर हम जिंक को रिमूव कर दें या रिएक्शन में ऐड ना करें तो एंजाइम की एक्टिविटी लूज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से पायरुवेट काइनेज एंजाइम है व्हिच इज मोस्टली एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम मेटल आयंस। सो इफ वी रिमूव द मैग्नीशियम एंड पोटेशियम मेटल आयंस फ्रॉम द रिएक्शन, तो रिएक्शन आपका पॉजिटिव वे में प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, दीज आर द बेसिकली पैरामीटर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसके बाद इनहिबिटर्स हैं। इनहिबिटर तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि किसी चीज को इनहिबिट करना, किसी चीज को रोकना। ठीक है, किसी चीज को रोकना, इनहिबिट करना। तो इनहिबिटर जाहिर है कौन से कंपाउंड्स हैं? इनहिबिटर्स आर द बेसिकली कंपाउंड्स व्हिच इफ decrease the activity of the enzyme or which inhibit the activity of the enzyme। किसी चीज को नहीं छेड़ना, तो मैंने सारी रखी है, इसको बताना। Inhibitors are the compounds which are the substances which are going to decrease or stop or inhibit the activity of the enzyme। ये enzyme की activity को decrease कर देते हैं। अब ये जी, there are two types of inhibitors, one is competitive inhibitor and second is non-competitive inhibitor। competitive inhibition रिवर्सिबल है, ठीक है, और जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो आगे लिखा हुआ है दैट इज इरिवर्सिबल। अब इनका मतलब क्या है कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव का? ये चीज तो डन होगी कि एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, और जिस चीज पे एंजाइम एक्ट करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है ना, मैंने एग्जांपल भी दी थी कि जैसे चीनी सबस्ट्रेट है, सुक्रोज, और इस पे जो एंजाइम एक्ट करेगा ना दैट इज सुक्रेज। ठीक है ना, तो एंजाइम्स सबस्ट्रेट के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है ना, सबस्ट्रेट होगा तो एंजाइम तभी रिएक्ट करेगा ना। तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये होता है बेसिकली कि जो इनहिबिटर होता है ना वो बेसिकली क्या करता है कि एज्यूम कर लेता है शेप सबस्ट्रेट की। इनहिबिटर try to assume the shape of the substrate, ठीक है, so that it may bind to the active site of the enzyme। ठीक है, हर एंजाइम के ऊपर एक 3 डायमेंशनल कैविटी है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, सपोज हम कहते हैं वो स्क्वायर टाइप है। ठीक है, और जो सबसेट अटैच होना है ना वो भी स्क्वायर ही होगा तो लगेगा, अगर वो सर्कल होगा तो नहीं फिट होगा, अगर वो ट्रायंगल होगा तो नहीं फिट होगा, रेक्टेंगल होगा तो नहीं फिट होगा। ठीक है,
तो वो जो स्क्वायर है ना वो सबस्ट्रेट है, लेकिन इनहिबिटर भी क्या करता है, चाहे उसकी शक्ल सर्कल हो चाहे रेक्टेंगल हो, वो भी अपनी शक्ल को ना स्क्वायर टाइप कर लेता है ताकि उसको एंजाइम मिस जज करे, उसको सबस्ट्रेट समझे और अपने ऊपर अटैच कर ले। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव इसको इसलिए कहते हैं कि इस तरह की इनोवेशन में both the substrate, जो actual substrate, real substrate है, and the basically the inhibitor, they compete to fit for on the active site of the enzyme. Basically, they compete to fit on the active site of the enzyme. ठीक है, तो इसलिए हम इसको कॉम्पिटिटिव कहते हैं कि इसमें जो सब इनहिबिटर है वो अपनी रियल शेप की बजाय जो है वो सबसेट की शेप एज्यूम कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, और ताकि एंजाइम समझे कि जी ये तो है सबस्ट्रेट और उसके साथ बाइंड करके। ठीक है, और एंजाइम mistakenly take the basically inhibitor as a substrate and bind to it, और जब इनहिबिटर बाइंड कर देगा तो फिर क्या होगा, फिर जाहिर है when inhibitor will bind तो ये क्या करेगा, ये एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा, एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना था, हमने पढ़ा था ना कि ईएस कॉम्प्लेक्स बनता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी को याद है कि नहीं? ठीक है, तो ईएस कॉम्प्लेक्स को बनने नहीं देगा, जब ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो जाहिर है प्रोडक्ट नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, और रिएक्शन जाहिर आपका प्रोसीड नहीं कर सकेगा। तो दिस इज अबाउट द बेसिकली कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। ठीक है, एंड दैट इज रिवर्सिबल। अगर इस इनहिबिशन में से हम उस इनहिबिटर को रिमूव कर दें तो आपका ईएस कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है, और रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव वे में प्रोसीड कर सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन। Dilution of the enzyme inhibitor complex by increasing the concentration of substrate will resume the enzyme activity। एक और चीज भी है कि जो इनहिबिटर और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन गया है, अगर हम उसको डिल्यूट करें ठीक है, अगर हम, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नॉर्मल तो बनता है ना, तो इसमें बन जाएगा एंजाइम और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एंजाइम और इनहिबिटर के कॉम्प्लेक्स को अगर हम डाइल्यूट करते जाएं, कैसे डाइल्यूट करेंगे कि सबसेट और डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, ठीक है, कि ये बिल्कुल डाइल्यूट हो जाए, तो फिर क्या होगा कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकता है। अच्छा जी, इसके बाद है जी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, एंड दिस इज इरिवर्सिबल इनहिबिशन ना, ही नॉन कॉम्पिटिटिव है। दीस इनहिबिटर्स डू नॉट रिजेंबल द सबस्ट्रेट। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि जो इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट की शेप को रिजेंबल करे या उसकी शेप एक्वायर कर ले कि एंजाइम उसको मिसगाइड समझे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें एंजाइम की सरफेस के ऊपर ना एक तो थ्री डिमेंशनल एक्टिविटी होती है ना, इसके अलावा और भी साइड्स होती हैं, बाइंडिंग साइड्स। ठीक है, एंजाइम्स की सरफेस के ऊपर और भी बाइंडिंग साइड्स बेसिकली होती हैं। ठीक है, तो उन बाइंडिंग साइड्स पे यही होता है ना, कभी एक्टिवेटर यानी कि जो ऐसे कंपाउंड्स अटैच होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, कभी इनहिबिटर अटैच होते हैं उन साइड्स पे जो एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन अदर साइड्स, ठीक है, बाइंडिंग साइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द एंजाइम। ठीक है, जहां पे दूसरे कंपाउंड्स अटैच हो सकते हैं। सबस्ट्रेट जो है ना वो स्पेसिफिकली थ्री डिमेंशनल कैविटी पे अटैच होता है, जो सबसेट होता है। बाकी जो कंपाउंड्स है ना वो दूसरी साइड्स पे अटैच होते हैं। तो अब ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ना, इसमें ये होता है कि इनहिबिटर डू नॉट ऑक्यूपाई द एक्टिव साइड। इनहिबिटर ये नहीं करता कि मैं एक्टिव साइड पे अटैच हो जाऊं और एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स ना बन सके, बल्कि इनहिबिटर ये करता है कि दूसरी किसी साइड पे अटैच हो जाता है, और उसके रिजल्ट में होता क्या है कि एंजाइम की जो थ्री डिमेंशनल जो स्ट्रक्चर है ना उसको चेंज कर देता है, एक्टिव साइड को चेंज कर देता है, यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज बेसिकली कर देता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि सबस्ट्रेट डज नॉट ऑक्यूपाई द एक्टिव साइड, इट बाइंड्स टू सम अदर साइट ऑन द surface of enzyme, and as a result it reduces or decreases the activity of the enzyme. So this type of inhibition is called as the non-competitive or irreversible। ठीक है, ये रिवर्सिबल इनहिबिशन है क्योंकि इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही बनेगा ना,
तो इनहिबिटर जो है वो इनएक्टिव तो कर रहा है एंजाइम को, लेकिन ये है कि जब उसने एक दफा इनएक्टिव कर दिया तो फिर देयर विल बी नो वे कि ये दोबारा रिज्यूम कर जाए। ठीक है, दोबारा फिर ये अपनी एक्टिविटी को गेन नहीं कर सकता। जी मरियम, देते हैं अभी ब्रेक, जस्ट वेट, क्योंकि फिर मगरिब हो जानी 6:30, फिर उसकी ब्रेक। तो हम जरा इसकी एग्जाम्पल्स ना पहले कर लेते। चलो ठीक है, 15 मिनट्स की ब्रेक है। सी यू एट 6 PM। ठीक है, 15 मिनट है तुम लोगों के पास, नमाज पढ़ लो और उसके बाद 6 बजे हम रिज्यूम करते हैं लेक्चर। ओके, 15 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल मीट एट 6 PM।